Good morning, friends. I am back again, but with slight delay, and I'm really sorry for that. I could not bring this video to you earlier due to some unavoidable reasons. Before I start my today's lesson, I want to place on record my thanks to you for your overwhelming response. I never expected it. Please keep the comments coming in, and I think we will have a very fruitful interaction. I will just start from where I left in the last video. If you remember, I told you that learning English can be fun. We can learn it very easily. It should not be a burden. It should be a very enjoyable experience. I also told you that we can learn English easily by using idea units. And I forgot, I'll also speak in Hindi. We will have this class in bilingual form. तो आपको मैं ये कह रहा था, sorry for that, we can learn English by using idea units. Idea units are basic units of language. Although basic unit of language is called a sentence, and sentence is made up of a number of words, phrases, clauses. Out of these, some are idea units. These idea units are easy to make, and you can collect them and use them in your language. I'll just start by giving example. Most of these idea units are based on one collocation, and this is noun, prep noun. If you read the newspapers, if you read books, novels, you will find umpteen number of examples of this collocation. Just give you an example. If I say a good day for picnic, a good day for picnic, this is an idea unit, and you can multiply it by using, just changing the words here and there, and you will have a plethora of such collocations. Now using them in a sentence will be very very easy. If you want to say, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि आज पिकनिक के लिए बहुत अच्छे दिन है, तो कहिए इट इज अ गुड डे फॉर पिकनिक, या बोलिए आपका इट इज नॉट अ गुड डे फॉर पिकनिक. कोई आदमी अपने ऑफिस के लिए क्लर्क ढूंढ रहा था, तो वो कह सकता है, ठीक है, कि ये इट इज अ गुड क्लर्क फॉर योर ऑफिस. कोई पिता अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहा है, तो उसके दोस्त को सजेस्ट कर सकते हैं, ही इज अ गुड बॉय फॉर योर डॉटर. अ गुड बॉय फॉर, इसका ये मल्टीप्लाई इफेक्ट हो गया आपका, अ गुड बॉय फॉर योर डॉटर. तो दिस इज इजी टू मेक. You do not need to worry about, आपका the construction of the sentence is already there. The construction is perfectly okay, no problem at all. So I want you to learn these idea units that will make your word work very very fast, and you can learn very fast. Now suppose I say another collocation I am giving. If I say, जो ये छत पे पतंग उड़ा रहा है लड़का, ये कौन है, तो कौन है का इंग्लिश होगी हु इज, और आपका जो दूसरा कोलोकेशन बनेगा आइडिया यूनिट का, वो हो जाएगा द बॉय फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ. द बॉय फ्लाइंग अ काइट ऑन द रूफ. नाउ दिस इज इजी. अब इसकी नकल करनी है आपने. इसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट. मल्टीप्लायर इफेक्ट अर्थ होता है कि जब आप कुछ सीख रहे हो, तो उसमें आपका जो नॉलेज है वो जुड़े नहीं, वो गुणे. 8 8 16 9, 8 8 64 हो, ये इस्तेमाल करो आप टेक्निक. अब इसको कैसे चेंज करना है आपने. अब आपने कहना है, इसके आगे क्या लगाना आपने, इसके आगे आप सेंटेंस बनाना आपने, तो आप कहेंगे कि मुझे नहीं पता ये जो लड़का छत पे पतंग उड़ा रहा है कौन है. इसके आगे लगाना है हु इज, या बोलो आई डोंट नो द बॉय फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ. सो इट इज सो इजी. आई डोंट नो, he knows, my father knows, nobody knows, everybody knows the boy flying kite on the roof.
मतलब ये मेरे कहने वाला ये है कि इन आइडिया यूनिट से आप बहुत तेजी से इंग्लिश को सीख सकते हो और इसकी नकल कर सकते हो। अब आपने कहना हो कि जो पार्क में बच्चे खेल रहे हैं कौन है, तो जो चेंज सेंटेंस में चेंज होना है वो कर लो, नहीं चेंज करना है उसको वैसे रह दो और आपका आइडिया यूनिट को आप चेंज कर दें। तो मैं उसके लिए कहूंगा द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क, हो गया। एक आदमी बाहर एंजॉय कर रहा है तो उसके लिए आपने बना दिया द मैन वेटिंग आउटसाइड, इट्स सो इजी। अब आपने बोला आई नो द मैन वेटिंग आउटसाइड या आई डोंट नो द मैन वेटिंग आउटसाइड आप, और ये कभी कभी इसको उठा के आप सब्जेक्ट भी बना सकते हैं आपका, इसका प्रयोग आप सब्जेक्ट में कर सकते हैं आपका। इफ आई से द मैन वेटिंग आउटसाइड इज आस्किंग फॉर यू, ये नया सेंटेंस बन गया आप। तो मेरे कहने मतलब ये है कि सेंटेंसेस बनाना आसान है, ये थोड़ा सा आपको आइडेंटिटीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। आई होप कि यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। इफ आई से आई नो द मैन, आगे ये लगाना आई नो लगाना इसके आगे, आप बाकी बना है द मैन वेटिंग आउटसाइड, और ये सब्जेक्ट बन सकता है। अभी फिलहाल ये नो का ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये नाउन का फ्रेज है, ये नाउन कोलोकेशन है। आप इफ आई से द मैन वेटिंग आउटसाइड इज आस्किंग फॉर यू, ये नया सेंटेंस बन गया आपका। अगर आस्क फॉर का आपका प्रयोग नहीं आता है तो वो भी सीख लो, क्या फर्क पड़ता है आपका। आस्क फॉर का अर्थ होता है किसी को डिमांड करना, यानी कहना कि आप उससे मिलना चाहते हो। ही इज आस्किंग फॉर यू, ये सिंपल इसका प्रयोग है। तो दीज कोलोकेशंस आर वेरी इजी। अगर मुझे कहना हो कि ये आदमी जो लड़का जो डांस कर रहा है फ्लोर पे ये मेरा फ्रेंड है, तो आपने कहा द मैन या द बॉय डांसिंग ऑन द फ्लोर, कितना आसान है, द मैन डांसिंग ऑन द फ्लोर। और इसमें ज्यादातर देखिए आप नाउन पे नाउन के ही कोलोकेशंस हैं, ठीक है ना। ये डांसिंग जो है आपका मैन का एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव आ सकता है, बस ये एडजेक्टिव मैन के बाद में आ रहा है, ठीक है। और ऑन आपका प्रीपोजिशन हो गया, द फ्लोर आपका अगेन नाउन फ्रेज हो गया आपका, आर्टिकल प्लस नाउन, द मैन डांसिंग ऑन द फ्लोर। अब आपने सेंटेंस बनाना हो कि जो लड़का फ्लोर पे डांस कर रहा है ये मेरा दोस्त है, तो बोले द मैन डांसिंग ऑन द फ्लोर इज माई फ्रेंड। अगर आपको ये कहना हो कि जो लड़का डांस कर रहा है उसको सब जानते हैं, तो से एवरीबॉडी नोज द मैन डांसिंग ऑन द फ्लोर। इट इज सो इजी, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। आपके बगल में बैठा आदमी, आपके पापा के बगल में बैठा आदमी मेरा नया बॉस है, द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू योर फादर। दूसरे तरह के सेंटेंसेस अलग अलग टेंसेस के वो भी अपन सीखेंगे, वो बहुत इजी है, वो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। पहले ये कोलोकेशन बना के आपकी काम बहुत आसान होने वाला है। द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू योर फादर, इसका अर्थ हो गया आपके पापा के बगल में बैठा आदमी। और मुझे अगर कहना हो कि आपके पापा के बगल में बैठा आदमी मेरा नया बॉस है, तो मैन सिटिंग नेक्स्ट टू योर फादर इज माई न्यू बॉस, दैट्स राइट। अगर आपने कहना हो कि जो लोग तुर पे हंस रहे हैं वो मूर्ख हैं, तो पहले आपने ये बनाना है वो लोग जो तेरे पे हंस रहे हैं, तो बोलो द पीपल लाफिंग एट यू, ये बता रहा हूं आपको। अब इसके कितने सेंटेंस बना सकते हो आप, इसके आप हजारों सेंटेंस बना सकते हो आप। आई नो द पीपल लाफिंग एट यू, द पीपल लाफिंग एट यू आर फूल्स, हो गया आपका, आर फूलिश। तो कितने बना सकते हैं आपका। अगर आपने कहना हो कि ऐसा आदमी जिसमें कॉमन सेंस नहीं है, तो आई मैन विदाउट कॉमन सेंस। अब आप ये सोचोगे शायद कि ये कोलोकेशन मुझे कहां से आएंगे, तो इन कोलोकेशन को आपको किताबों से अखबारों से पढ़ना पड़ेगा। अगर इनको नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, पढ़ना तो पड़ेगा, ये इकट्ठे करने पड़ेंगे आपको। लेकिन एक कोशिश मैं और कर सकता हूं, अभी देखता हूं, मैंने आपको कहा भी था कि यूट्यूब के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि अब मैं पीडीएफ अगर उसमें डाल दूंगा तो आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कोलोकेशन बना के मैं आपको दे दूंगा। एक तो बात आपसे मैंने ये कहनी थी, ये बहुत आसान है, सारे टेंसेस आसान है, कुछ भी मुश्किल है नहीं, आपको इंग्लिश को बोलना पड़ेगा। और ये आइडियल्स बना के ये डेफिनेट है कि आप इंग्लिश को फास्ट बोल पाओगे, लिख पाओगे बिना किसी एरर के। इट्स सो इजी, अ मैन विदाउट कॉमन सेंस, दैट्स इट, ही इज अ मैन विदाउट कॉमन सेंस। अ मैन विदाउट कॉमन सेंस इज यूजलेस। कितने समय बना सकते हो आप। और बात तो सही है कि जिस आदमी में कॉमन सेंस नहीं है वो क्या काम का है। और ये भी बात सही है कि कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन थिंग अमंग कॉमन पीपल। ज्यादातर लोगों को कॉमन सेंस नहीं होता है आपका, पीपल आर नॉट कंसिडरेट, ठीक है ना। एनीवे, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। आपको मैं जो बताना चाह रहा था यही था
कि आइडियोनिक्स मेक लाइफ वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, आई एम टेलिंग यू। ये आप सीख लो, इनको इकट्ठा कर लो, और इसी तरह से आपने फ्रेजेस सीखने अलग अलग, ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, आप जैसे वर्ब के फ्रेज बनाओ, सारी सबसे पहले वर्ब अगर आपने अच्छी बनानी हो तो सबसे पहले जितनी भी कॉमन वर्ब्स होती हैं, ठीक है ना, उनके आप फ्रेज बनाओ। अब आप सोचेंगे कि वर्ब के फ्रेज बना के क्या फायदा होता है, तो इसके फायदा होता है बच्चों कि बहुत सारी वर्ब्स हैं जो ट्रांजिटिव, इसके बारे में बाद में बताऊंगा, मैं टेक्निकल चीज सब आपको बाद में पढ़ाऊंगा। बहुत सारे वर्ब हैं जो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, बहुत सारे वर्ब हैं जो आपकी ट्रांजिटिव के अंदर मोनो है या आपका डाई ट्रांजिटिव है, बता रहा हूं आपको। कई ऐसे वर्ब हैं जो इंट्रांजिटिव हैं, मैं लिख देता हूं आपके लिए, लेकिन आपने ये अभी इसमें मत ध्यान दो क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं। आपको मैंने कहा था एक दो लेक्चर मेरे ऐसे होंगे बिल्कुल आपको बेसिक नॉलेज सिखाने के लिए। टेक्निकल नॉलेज बहुत सारा देंगे आपको, चिंता मत करो आप। तो ऐसी वर्ब होते हैं जिनके ट्रांजिटिव वर्ब करते होता है, जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं, उसमें अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं ना दें तो उनका सेंस कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, तो जो आप फ्रेज बनाओगे ना आपका, तो उसके आगे आप अपने आप ही ऑब्जेक्ट लगा दोगे, तो अपने आप सब ठीक बन जाएगा। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको कहूं टू मेमोराइज वर्ड्स, तो आप मेमोराइज वर्ड के बाद में वर्ड जरूर लिखें आपका, या समथिंग लिख दें आपका। तो किसी ने पूछा तुम क्या कर रहे हो, ये जो टू का प्रयोग करते हैं बच्चों, ये टू मैं इसलिए लिखता हूं, आपको डिक्शनरी वगैरह में कहीं ये मिलेगा नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं लिखता हूं। ये टू लिखने का उद्देश्य ये होता है, ये इन्फिनिटी का पार्ट है वैसे मेरी अभी इसके हिसाब से, ठीक है, लेकिन इसका मकसद ये होता है कि आगे वाला वर्ड आपका वर्ब है। ऐसा ना सोचे आप इसको प्रीपोजिशन समझ लें आपका। अब किसी ने कहना है कि वो क्या कर रहा है, आपने कहना है कि वो शब्दों को याद कर रहा है, तो बोलो ही इज मेमोराइजिंग वर्ड्स। तो फ्रेज बनाने के आपका काम बड़ा आसान हो जाता है, ही इज मेमोराइजिंग वर्ड्स, शब्दों को याद कर रहा है आपको। अब ये जो आपका ये वर्ब का जो फ्रेज बना है इज मेमोराइजिंग, या है ना, तो ये नाउन का काम भी कर सकता है ये मेमोराइजिंग वर्ड्स, और वर्ड्स के आगे आप एडजेक्टिव लगा सकते हो। ये बस ये आपको आ जाए अगर शब्दों के साथ खेलना, तो आपका काम बड़ा आसान बन जाए। मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण देता हूं। एक टीचर ने बच्चों को टास्क दिया, थोड़ा टास्क बढ़ाई था, ठीक है ना आपका, तो टीचर ने कहा इनको 500 वर्ड्स को याद करो एक ही दिन में, कल मैं सबसे पूछूंगा। तो एक लड़के ने हाथ छोड़ा कि सर मैं आपको कहना चाहता हूं, कि बोलो क्या क्या कह रहे हो। तो उसने ये कहा कि मेमोराइजिंग 500 वर्ड्स इन वन डे, ये कोलोकेशन बन गया आप इन वन डे। अगर मैं आपको कहूं कि ये कोलोकेशन कुछ नहीं है, ये नाउन प्रेप नाउन है, गौर से देखें आप, डे आपका क्या है, नाउन है, वन क्या है, डिटर्मिनर है, बीच में आ गया प्रीपोजिशन, वर्ड्स आपका नाउन है, और ये जो वर्ड है आपका ये पूरा पूरा ये नाउन का फ्रेज हो गया। तो नाउन प्रेप नाउन ही है और कुछ नहीं है आपका। और उसने कहा मेमोराइजिंग 500 वर्ड्स इन वन डे इज बियॉन्ड मी, इज बियॉन्ड मी, और इसका अर्थ हो गया कि भाई ये 500 शब्दों को याद करना एक दिन के अंदर वो मेरे बस की बात नहीं है। अब इसकी नकल कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूं। आप अगर किसी ने कहना हो कि कार खरीदना मेरे बस की बात नहीं है, तो बोलो बाइंग अ कार, बाइंग अ कार। ये देखो ये नया आपका एक आइडिया यूनिट बन गया, बाइंग अ कार इज बियॉन्ड मी। या आपने किसी दोस्त को बोलना अरे तो पैसे वाला है भाई, तो क्यों नहीं खरीद सकता, तो आप उसको कह सकते हो बाइंग अ कार इज नॉट बियॉन्ड यू, इट इज सो इजी। I just want to tell you, learning English should be fun. You should use a fun way to learn this language. It is a beautiful language, and this can change your life. और एक चीज जो आप लोग ये याद रखना, आप जो इंग्लिश सीखोगे ये इंग्लिश अपने लिए नहीं है, अपने लिए तो है ही, दिस विल गेट यू अ जॉब। and I am not talking about sarkari job. Getting a sarkari job, government job is so easy. It is child's play. A walk down the park, as the saying goes. सबसे इंपॉर्टेंट काम है बच्चों कि आपके घर में इंग्लिश का माहौल होगा। द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ चिल्ड्रन विल बी वेरी वेरी इंटेलिजेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदी पढ़ के कोई आदमी इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, लेकिन ये भी फैक्ट है कि जितना नॉलेज इंग्लिश में है उतना हिंदी में नहीं है। हिंदी को भी समय लगेगा इंग्लिश का स्थान लेने के लिए, ठीक है। और इंग्लिश आपकी अच्छी होगी, नौकरी यहाँ हो विदेश में हो, एवरीथिंग विल बिकम इजी। कौन नहीं चाहता, मुझे बताइए आपके कि आपके बच्चे ठीक है ना आपका बहुत अच्छी स्कूलों में पढ़े, जैसे दून स्कूल में, लैंसडाउन में,
मनाली में, आपके दार्जिलिंग में, मसूरी में कितने शानदार स्कूल हैं। वहां बच्चों का एडमिशन उनके पैदा होने से पहले हो जाता है और माँ बाप का इंटरव्यू लिया जाता है। उस स्कूल में अपने बच्चों को भर्ती कर दोगे आप, पैसे कमा के, पैसे भी लगेंगे, माँ बाप का इंटरव्यू देना पड़ेगा, माँ बाप को जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा। उसके आधार पर उनके बच्चों का एडमिशन होगा। फिर वो बच्चे स्कूल से निकलकर सीधा ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में मिलेंगे, या हार्वर्ड में मिलेंगे, या वो स्टैनफोर्ड में जाएंगे, kellogg में जाएंगे। बड़ा सोचना बुरा नहीं है, बड़ा शुरुआत कहीं से भी कर सकते हो आप। एक बैंक में क्लर्क भी बन जाए तो बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छा है। कि सबको बताया कि बैंक में क्लर्क बन गया तो 3 साल में अफसर बन ही जाएगा। इसलिए मैं कई बार कहता हूं भाई एसबीआई पीओ एक प्रेस्टिजियस आपका जॉब है, तो कोई अगर बच्चा सीधा एसबीआई पीओ नहीं बन सकता तो वो एसबीआई का क्लर्क बन जाए, 3 साल में वो पीओ के बराबर टीओ बन जाएगा। वेयर इज द प्रॉब्लम? बजाय इसके वो 4 साल लगाए पीओ ना बने और बाद में गारंटी है भी नहीं बने ना बने। क्लर्क का पेपर थोड़ा सा लो लेवल का होता है, लेकिन आप ढंग से पढ़ोगे तो पीओ भी, मैंने तो हजारों पीओ बनाए, समझा रहा हूं आपको, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। तो ये कोलोकेशन आपने बनाने हैं। एक वाइफ ने अपने हस्बैंड की तरफ इशारा किया कि यार इस आदमी को समझना तो मेरे बस की बात नहीं है, हाँ? तो क्या कहेगी वो? अंडरस्टैंडिंग दिस मैन इज बियॉन्ड मी। तो बहुत आसानी से ये बन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको कोलोकेशन बनाना सीखने, आपका अंडरस्टैंडिंग दिस मैन इज बियॉन्ड मी। देखो ये शब्द बन गया। तो शायद ये नाराज बीवी बोल रही है अपने हस्बैंड के लिए कि भाई इस आदमी को समझना मेरी बस की बात नहीं है। कितने बना सकते हो ऐसे आप? एक आदमी ने कहा यहां आना आसान नहीं था, कमिंग हेयर वॉज नॉट ईजी, गोइंग देयर वॉज नॉट ईजी, अर्निंग 80,000 रुपीज अ मंथ इज नॉट ईजी। ये कोलोकेशन आप बनाओगे, गोइंग देयर, कमिंग हेयर, बाइंग इट, सेलिंग इट, बाइंग अ हाउस, अरे माय गॉड, एवरीथिंग बिकम सो ईजी। मुझे अफसोस लगता है कि जब बच्चे इतने फांसी खा खा के पढ़ते हैं तो ये नहीं है। अब ये पढ़िए, आपको साथ में ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। ये तो ऐसा नहीं है कि बिना ग्रामर क्या काम बन जाएगा। ग्रामर आपको भाषा की बारीकियां सिखाएगा, ठीक है ना। आप ग्रामर का उद्देश्य ये होता है कि जो आप कहें, बोलें, सुने, पढ़ें, पढ़ के समझें, लोगों द्वारा बोल के आप सुन के समझने की कोशिश करें, वो एग्जैक्टली करेक्ट हो। इंग्लिश के तो पार्ट ही यही है। मैं आपको ये बताता हूँ, आज थोड़ा बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि इंग्लिश की पढ़ाई करते समय आपको इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। उसकी पहली चीज़ है ग्रामर। ग्रामर, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आप ग्रामर अकेले काम की नहीं है, ग्रामर में आपको यूजेज जोड़ना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूँ कि यूजेज क्या होता है। बच्चों ये लेक्चर नहीं है, अभी आपकी पढ़ाई का मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है। मेरा एक जर्नल है, मैं आप इनको बता के आपको जनरल चीज़ें आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, समझा रहा हूँ आप। कोई कहेगा ग्रामर और यूजेज में क्या फ़र्क है? ग्रामर आपको सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन देता है, सिंटैक्स देता है कि आपकी वाक्य की रचना क्या होगी, उसमें शब्दों का वर्ड ऑर्डर क्या होगा। सिंटैक्स क्या होता है? वर्ड ऑर्डर होता है सेंटेंस के अंदर। दिस इज वर्ड ऑर्डर। कौन सा शब्द कहाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा, कौन सा शब्द आपके कभी एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है, बहुत सारे एडजेक्टिव ऐसे नाउन के बाद में आते हैं। तो क्या करोगे फिर? आपका ये सीखना पड़ेगा हमको, ये आपको ग्रामर सिखाएगी। ये तो जनरल नॉलेज है, सबको पता है कि आपका एडजेक्टिव अब नाउन से पहले आता है, लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिसमें आपका एडजेक्टिव नाउन के बाद में आता है। तो जैसे मैं आपको कह रहा था ना कि आपने वर्ब की फ्रेज बनानी है, तो फ्रेज बना के इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हो आप। ये सब आपके ग्रामर के पार्ट हैं। आप अगर वर्ब का फ्रेज बनाएंगे और कल उस फ्रेज में एक एडवर्ब जोड़ देंगे, तो आपको शुरू से ही वर्ब और एडवर्ब का जो संबंध है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर वर्ब फ्रेज बनाओगे और उसके साथ में एडवर्ब जोड़ दोगे। जैसे अगर मैं आपको कहूं टू लाफ, अब देखो लाफ क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है कि उसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं लगता। हाँ, जब ये फ्रेज होता है लाफ एट, तब ये आपका फ्रेजेस भी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होती हैं, ठीक है। लेकिन आप कह सकते हो टू लाफ फुलिशली, हो गया, ही वाज लाफिंग फुलिशली। तो एडवर्ब जोड़ दिया आपने, आपको साथ में ये भी सीखना शुरू हो गया अब कि लाफ आपके इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। तो आपने एडवर्ब कहाँ लगाना है? वर्ब के बाद में। ये फ्रेज बना बना के फिर सीखने की जरूरत नहीं है आपको। ये एडवर्ब का ये वाला रूल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि एडवर्ब कहाँ लगाओगे आप, ये अपने आप लगते शुरू हो जाएंगे। आपको अपने आप पता लगेगा कि जो आपके ट्रांसिटिव वर्ब के बाद में अगर कोई वर्ब ट्रांसिटिव है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा आपको टू बीट समबडी बैडली, मैंने आपको कहा था मैं एसबी लिखता हूं, उसका अर्थ होता है समबडी।
अब आपका देखो, आपका ये बीट कैसी वर्ब है? बीट आपकी ट्रांसिटिव वर्ब है। तो आपने एडवर्ब कहां लगाया? ट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद में। तो अगर आप आदत डाल लोगे बच्चों तो इनको सीखना बहुत आसान है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ब का चैप्टर, तो मैं आपको एक दो मेरे वीडियो ऐसे होंगे जिसमें केवल वर्ब के फ्रेजेस होंगे, उसमें कई चीजें आपके आसान हो जाएंगी। अगर कोई वर्ब डाई ट्रांसिटिव है, बता रहा हूं आपको, तो उसका फ्रेज बनाओ। टू गिव समबडी, तो गिव कैसी डाई ट्रांसिटिव वर्ब है। डाई ट्रांसिटिव वर्ब का अर्थ होता है, मैं इसमें लिख देता हूं एक सेकंड आपको, ये जो एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये डाई ट्रांसिटिव वर्ब का है। कोई पूछे डाई ट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? ये वर्ड ठीक है, हाँ, डाई ट्रांसिटिव गलत नहीं है। मैं इसको अगर डाल दूंगा तो आपकी रेड लाइन नहीं लगेगी आपको। टू गिव समबडी समथिंग, ये इसका फ्रेज बनता है। तो ऐसे आप बना लोगे तो आपको कॉन्शियसली ये काम नहीं करना पड़ेगा, ये काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है आपका। इफ आई से आई गेव हिम माई पेन, तो इसमें जो गिव वर्ब है बच्चों, ये डाई ट्रांसिटिव वर्ब है। जो दिया गया वो पेन है, और जिसको दिया गया है वो आपका हिम है, दैट पर्सन है। तो हिम आपका इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और जब आपका ये नियम है कि जब आप डाई ट्रांसिटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना, तो इसके बाद में पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, इनडायरेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद में फिर क्या आता है? उसके बाद में फिर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, वो डायरेक्ट। थोड़ी टाइप में मेरी गलती हो रही है, मेरी थोड़ा अंगूठे पे लगी हुई है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ये इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलो शॉर्ट में क्या बड़ा भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बात कर, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब आप वर्ब की फ्रेज बनाना शुरू करते तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामर आपको ये सिखाता है, सिंटैक्स सिखाता है, वर्ड ऑर्डर सिखाता है। और जब मैं आपको कोलोकेशन की बात करता हूं बच्चों, तो ये कोलोकेशन ही वर्ड ऑर्डर है, ये वर्ड ऑर्डर है, इसी को वर्ड ऑर्डर कहते हैं आपका, कोलोकेशन को, कि कौन सा वर्ड किसके साथ में लगता है। ये सेट है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते, समझा ना आपका। एक उदाहरण देता हूं आपको, और ये वर्ड ऑर्डर किसी तरह का भी हो सकता है कोलोकेशंस का। ये आपका डिटरमिनर हो सकता है, समझा रहा आपका, और डिटरमिनर से पहले प्री डिटरमिनर भी आ सकता है, याद रखिए आपका। इससे पहले प्री डिटरमिनर भी बच्चों आ सकता है। आपको जो पढ़ाऊंगा डिटरमिनर्स, तो मैं आपको बताऊंगा डिटेल के अंदर अब कि डिटरमिनर से पहले प्री डिटरमिनर आ सकते हैं, डिटरमिनर्स के बाद में प्री डिटरमिनर बाद में डिटरमिनर्स आ सकते हैं, इसके बाद में एडवर्ब आ सकता है, एडवर्ब बाद में एक एडवर्ब और आ सकता है, इसके बाद में एक एडजेक्टिव आ सकता है, इसके बाद में आपका नाउन आ सकता है। बहुत कॉमन कोलोकेशन, कोलोकेशन एक नहीं होता। मैं एक बार आपको कोलोकेशन की भी क्लास लूंगा अलग से, आप ठीक है ना, कि क्या क्या कोलोकेशन बन सकते हैं आप, ठीक है। ये बहुत ईजी है। लेकिन जरूर नहीं है कि जब ऐसा आप कोलोकेशन बनाए तो उसमें ये सारे फैक्टर्स आए, कोई जरूर नहीं है। इसमें 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, वो तो आपके ऊपर है और आपके नॉलेज के ऊपर है, और सेंटेंस के अंदर जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर है। इसके बारे में डिटेल में फिर मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बस ये समझना आपने कि एक नया तरीका है, पुराने तरीके से फार फार बेटर है। पुराने तरीके भी खराब नहीं है, पुराने तरीकों ने ही इनको जन्म दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वी कैन नॉट डिस्काउंट द कलेक्टिव इंटेलिजेंस ऑफ आवर forefathers, the great teachers that have gone before us, and there are still there. That's right, up to guide us, to teach us. No, we should never do that. एक मैं उदाहरण देता हूं, शायद मैंने आपको बताया भी था आपको एक बार, या शायद नहीं बताया होगा, मुझे पता नहीं है, ठीक है। डिटरमिनर्स सबको पता है क्या है? प्री डिटरमिनर्स वो वर्ड हैं जो डिटरमिनर से पहले आते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा, ऑल आपका डिटरमिनर भी है और ऑल आपका प्री डिटरमिनर में। जब आप सोते हो ऑल द बॉयज, तो इसमें ऑल आपका प्री डिटरमिनर है, ठीक है ना आपका, और द आपका डिटरमिनर हो गया। ये सब आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि डिटरमिनर्स क्या क्या होते हैं, प्री डिटरमिनर्स क्या होते हैं। क्वाइट आपका प्री डिटरमिनर भी हो सकता है आपका,
क्वाइट। कैसे, समझा ना आपको? जैसे क्वाइट द अपोजिट, अगर मैं ऐसे कहता हूं क्वाइट द अपोजिट, तो इसका इसका अगर कोलोकेशन आप करो तो अपोजिट इसमें आपका नाउन है। अपोजिट आपका, देखो बच्चों, अपोजिट आपका एडजेक्टिव भी है, अपोजिट आपका नाउन भी है, दैट्स राइट आप, और अपोजिट आपका एडवर्ब भी है। द आपका आर्टिकल हो गया, आर्टिकल से पहले जो शब्द आ रहा है आपका, वो आपका प्री डिटर्मिनर ही होगा। कि आर्टिकल से पहले शब्द आता है वो प्री डिटर्मिनर अलावा कुछ नहीं हो सकता। क्या होगा आप मुझे बताइए। आप क्वाइट एडवर्ब भी है। अगर आपने कहा इज क्वाइट हैप्पी, तो ये जो शब्दों का भंडार है इनको हमको समझना बहुत जरूरी है। अभी मैं इसे आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, बस आपको उदाहरण, मैंने कुछ बोला है तो फिर हमको बोलना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा आपको क्वाइट आपका एडवर्ब है, तो मैं अगर मैं आपको कहूं ही इज क्वाइट हैप्पी, ही इज क्वाइट हैप्पी, तो इसमें क्वाइट आपका एडवर्ब हो गया बच्चों, क्योंकि हैप्पी आपका एडजेक्टिव है और जो शब्द एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होता है। लेकिन ऊपर के सेंटेंस में अगर हम इसका सेंटेंस मैंने नहीं बनाया, अगर मैं कहूं क्वाइट द अपोजिट इज ट्रू, तो मैं ये कह रहा हूं इस सेंटेंस में कि जो बात कही जा रही है उसका उल्टा ठीक है। क्वाइट द अपोजिट इज ट्रू, इसमें क्वाइट वर्ड आपका प्री डिटर्मिनर है, ये कह रहा हूं मैं आपको। चूंकि ऑल आपका डिटर्मिनर भी होता है, इसलिए ऑल सीधा नाउन के आगे भी आ सकता है, ऑल बॉयज भी कह सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। तो ये चीजें हमको समझनी पड़ेंगी। एंड इज क्वाइट हैप्पी में क्वाइट आपका एडवर्ब हो गया। वो वर्ड जो एडजेक्टिव क्वालिफाई करे, उसकी डिग्री बताए, उसकी इंटेंसिटी बताए, तो वो वर्ड आपका एडवर्ब होता है। मैं इसमें फिलहाल अभी आपको नहीं, जस्ट जनरल व्यू दे रहा हूं, इसलिए मैं सब बातें कह रहा हूं। अदरवाइज जब एक एक करके अपने सीखेंगे आराम से, तो इनको डिटेल में सीखेंगे। तो आपको मैं ये कह रहा था, जब आप वर्ब का फ्रेज बनाए तो वर्ब का फ्रेज बनाए, उसके साथ में हो सके तो एडवर्ब जोड़ दें, उसके साथ में हो सके तो उसका आगे आप उसका एक सब्जेक्ट जोड़ दें, ऑब्जेक्ट जोड़ दें, ताकि पता लगे कि ये जो वर्ब है ये आपका ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। और अगर ये डाई ट्रांजिटिव हो तो उसको दो दो ऑब्जेक्ट दे दीजिए आपका, जो उसको आप बनाओ, ठीक है ना आपका। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आए, कब? जब वर्ब आपकी डाई ट्रांजिटिव हो, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। और दूसरा मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाह रहा था कि भाषा के क्या क्या वो हैं। तो भाषा के जो अंग हैं अलग अलग, उसमें पहला मैंने बताया था आपको ग्रामर और यूजेस, है ना। मैं ऊपर लिखा, मैं दोबारा लिख रहा हूँ इसको, ऊपर मैंने लिखा था ये ग्रामर ही, क्योंकि मेरा मानना है कि केवल ग्रामर काम की नहीं होती है, ग्रामर साथ आपको यूजेस जोड़ना पड़ता है। अगर यूजेस नहीं छोड़ा तो ग्रामर भी कंप्लीट नहीं है आप, ठीक है। क्योंकि कोई सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो सकता है, लेकिन हो सकता है यूजेस के हिसाब से ठीक ना हो। ये इसका यूजेस और ग्रामर का आपस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जैसे किसी बच्चे ने कहा आई टर्न इन अराउंड 12 PM, तो उसका अर्थ है कि मैं 12 बजे के आसपास सोता हूं। समझा रहा आपको, टर्न इन मतलब सोने जाना होता है, टू गो टू बेड। अब इसमें अराउंड क्यों लगाया आपने? कि कोई भी आदमी, कोई वो तो है नहीं कि रोबोट है, उसको आपने टाइम कर दिया, प्रोग्राम कर दिया, 12 बजे सो जाएगा। अराउंड का अर्थ हो गया 5-7 8-10 मिनट पहले, 5-10 मिनट पहले या बाद में, है ना आपका। तो ये तो नहीं कर सकते आप आई टर्न इन एट 12, यू कांट से दिस एट 12 PM। हाउ कैन आई से दिस? कि आप 11:59 तक जगे हुए थे, एंड द मोमेंट द क्लॉक स्ट्रक 12 यू जस्ट फॉल asleep, दिस कांट हैपन। हाँ, उठने के लिए ठीक है, तो इसका आई टर्न इन एट 12 PM ग्रामेटिकली करेक्ट नजर आ रहा है, यूजेस के हिसाब से इट इज इनकरेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? यूजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जहां तक उठने का सवाल है, आप अलार्म लगे उठते हो, तो उसमें अराउंड, उठने के लिए अराउंड और एग्जैक्ट टाइम भी आप लगा सकते हो। तो ये आपका यूज और आपका ग्रामर और यूजेस का फर्क है। आप कह सकते हो आई गेट अप एट 4 AM, नो प्रॉब्लम, या अराउंड 4 AM भी कह सकते हो आप, दोनों लगा सकते हो आप। ये भी कह सकते हो कि आई गेट अप बिफोर 4 AM या आई गेट अप आफ्टर 4 AM, आई कैन गेट अप अराउंड 4, आई गेट अप अराउंड 4 AM, नो प्रॉब्लम, ये सब कह सकते हो आप। और टाइम नहीं लगाना तो बोलो मैं बहुत जल्दी उठता हूं घोर में, आई गेट अप इन द वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। ये सब सीखना आपने। मैं सुबह मैं बिल्कुल सुबह सुबह उठता हूं। तो लैंग्वेज का एक पार्ट बच्चों ये है ग्रामर एंड यूजेस, ये मैं आपको बता रहा हूं,
ग्रामर यूजेस। लेकिन इसमें दोनों चीजें शामिल है, ग्रामर यूजेस में ग्रामर भी है और साथ में यूजेस भी है। अगर इसमें यूजेस नहीं है तब ये गड़बड़ है, ये मैं बता दूं आपको। तो पहला पार्ट आपका ये है, दूसरा पार्ट आपका वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप वोकैबुलरी करते हो बच्चों, तो मेरा ये मानना है कि आपने केवल शब्दों को नहीं करना, शब्दों को कोलोकेट करना है, अकेला शब्द नहीं। और जब किसी भी शब्द को आप करते हो तो आपने उसका पूरा पूरा यूजेस का ध्यान रखना है। कोई भी शब्द आपको मैंने पिछले शायद वीडियो में बताया भी होगा कि व्हेन यू कम अक्रॉस अ न्यू वर्ड यू शुड नो 5 थिंग्स अबाउट दैट वर्ड। फर्स्ट, उसका पार्ट ऑफ स्पीच, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। दूसरा, नेचुरल उसका मीनिंग। तीसरा, उसका प्रोनाउंसिएशन, या प्रोनाउंसिएशन पहले डाल लो, मीनिंग बाद में डाल दो, कोई बात नहीं। तो पहला उसका पार्ट ऑफ स्पीच, दूसरा उसका प्रोनाउंसिएशन, तीसरा उसका मीनिंग, चौथा उसका डेरिवेटिव, और पांचवा उसका यूजेस, कोई भी शब्द हो। और इनके सबके साथ में आपने मेन चीज है कि अगर वो नाउन है, ठीक है, तो उसको आर्टिकल के साथ में, नाउन के साथ में, एक साथ में बीच में एडजेक्टिव जोड़ दो आप, कि भाई कोई इसके साथ में कौन सा एडजेक्टिव लगता है। जैसे आपने सीखा हंगर, जैसे आपने सीखा थर्स्ट। और शब्दों के दो अर्थ होते हैं बच्चों, ध्यान ये कभी मत भूलना आप। शब्दों का एक मीनिंग होता है विच इज कॉल्ड लिटरल मीनिंग, वो क्या में सीखना बहुत जरूरी है। दूसरा मीनिंग होता है फिगरेटिव मीनिंग, भावार्थ। भावार्थ का तो हिंदी में इसको अपन भावार्थ कहते हैं ना आपका, फिगरेटिव मीनिंग को, है ना। ये दोनों आपको आने चाहिए। जैसे थर्स्ट है, थर्स्ट तो थर्स्ट प्यास है, इसका कोलोकेशन हो गया आपका अनक्वेंचेबल थर्स्ट, अनक्वेंचेबल थर्स्ट। अब ये अनक्वेंचेबल थर्स्ट, ये मैं आपको कहूंगा, अगर आप थर्स्ट वर्ड सीख रहे हो, इसलिए मैंने आपको इसका कोलोकेशन दे रहा था। तो ये बच्चों इसका फिगरेटिव अर्थ है ना, ठीक है। इफ आई से, और इसका कोलोकेशन बनाओ अनक्वेंचेबल थर्स्ट फॉर नॉलेज, ये सेम है बच्चों आपका। अगर आप गौर से देखोगे ये नाउन प्राइम नाउन है, और इसको सेंटेंस बनाना हो और आपने कहना हो कि इसके पास में ज्ञान की बहुत भूख है, बहुत प्यास है, तो आप बोलो ही हैज अनक्वेंचेबल थर्स्ट फॉर नॉलेज। क्वेंच का मतलब प्यास को बुझाना होता है। अब ये वर्ब है, इसका फ्रेज बना दो, टू क्वेंच थर्स्ट, ये ऐसे फ्रेज बनाओ आपको। और अक्सर मैं भी कहता हूं जब आपको प्यास लगी हो तो आपको पानी पीना चाहिए, ठीक है ना। आपको जो प्यास लगी हो तो पानी पीना चाहिए। पेप्सी, जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं वो नहीं पीने चाहिए, वो अच्छे नहीं होते हेल्थ के लिए। तो किसी ने अगर ये कहना हो कि पेप्सी क्यों पी रहा है, अरे छाछ पी, बटर मिल्क पी, वेप का ग्लास पी ले, ठीक है ना, ये मत पी, पेप्सी मत पी। तो आपने कहना है कि पेप्सी तेरी प्यास नहीं बुझाएगी। तो कैसे हो गया आप, तो उसको बोलिए अ पेप्सी कैन नॉट क्वेंच योर थर्स्ट। ये इसका लिटरल मीनिंग हो गया, आपको क्वेंच योर थर्स्ट, ये इसका लिटरल मीनिंग हो गया। और जब आपने कहा ही हैज अनक्वेंचेबल थर्स्ट फॉर नॉलेज, वो उसका फिगरेटिव मीनिंग हो गया। तो ये कह रहा हूं, जब भी कोई शब्द आए आपके सामने तो कोशिश करें आपका इस शब्द के अगर दोनों अर्थ है तो मैं दोनों अर्थ जानूं, ठीक है, और उसका कोलोकेशन जानूं। अनक्वेंचेबल थर्स्ट फॉर नॉलेज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इनसेसिबल हंगर फॉर नॉलेज, इनसेसिबल हंगर फॉर नॉलेज। मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था बच्चों कि शब्दों की कोलोकेशन है, एक वर्ड इसी के साथ, जैसे हंगर आपने अगर फिगरेटिव सेंस में कहना हो तो इसके आगे आप अनक्वेंचेबल नहीं लगा सकते, क्योंकि क्वेंच एंड थर्स्ट जाते हैं साथ के अंदर। तो अगर आपने कहना अनबुझ प्यास, तो बोलना आपने अनक्वेंचेबल थर्स्ट। और आपने बोलना है आपका ऐसी भूख जो कभी शांत ना हो सके, तो इनसेशुअल हंगर फॉर नॉलेज। मीनिंग सेम है दोनों का आपका, और प्रयोग भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ही हैज इनसेशुअल हंगर फॉर नॉलेज। तो मेरे कहने का मतलब ये है, बस मैंने आपको बता दिया। ये वीडियो मैं आपका एक्चुअली लंबा नहीं करना चाह रहा था, लेकिन लंबा होता जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा छोटा करने की। थोड़ा आपको बता दूंगा इंग्लिश में आपने क्या क्या पढ़ना है। तो दूसरा बच्चों आपका वोकैबुलरी है, और तीसरा आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस है, इडियम्स एंड फ्रेजेस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीन जो हैं आपके, ये बहुत बहुत जरूरी है, ध्यान रखना आपका, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम फ्रेजेस
अगर हमें नहीं आएंगी तो हम अनपढ़ हो जाएंगे। आपको कभी कभी आप बहुत चौंक जाओगे जब किसी एडी में फ्रेज में बहुत सिंपल वर्ड्स हों, बहुत सिंपल वर्ड, जैसे मैं आपको कहूँ आई एम ऑल इन। ऑल इन एक फ्रेज है, इसका मीनिंग होता है टायर्ड। अगर किसी को ये नहीं पता कि ऑल इन का मीनिंग टायर्ड होता है, इसके बच्चों को इसका सेंटेंस का अर्थ है आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। तो किसी ने कहा कि चलो शाम को क्रिकेट खेलते हैं, तो उसने कहा यार सॉरी आज मैं नहीं खेल सकता, आई कैन नॉट प्ले टुडे बिकॉज आई एम ऑल इन। तो यू आर टायर्ड। अब इसमें शब्दों के अर्थ में आते हैं, शब्दों के अर्थ में आते हैं, लेकिन ये फ्रेज नहीं आता है, इसलिए हमको ये अर्थ समझ में नहीं आएगा। ऑल इन का प्रयोग लिटरल भी होता है। तो बच्चे क्लास में आ रहे थे, मैं बाहर खड़ा था और मैंने बच्चों को कहा, एक बच्चा लड़का आया कि सर अभी क्लास आ जाओ, सब आ जाए, सब आ गए हैं, आप आ जाओ। मैं थोड़ा किसी से बात कर रहा था, तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आर ऑल इन, आर ऑल इन। अब देखो इसका मीनिंग आपका लिटरल है, इसका अर्थ हो क्या सब आ गए हैं। तो ये जो चीज है आपकी ये चलती रहेगी, ठीक है। तो ये मैं आप जो पढ़ाऊंगा, तो जब एक पढ़ाते समय एक एक वर्ड एक एक का मैं आपको बताता भी रहूंगा। और चौथा है बच्चों है शब्दों का प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मतलब केवल उच्चारण ही नहीं है, इसके अंदर आपका इंटोनेशन वगैरह सब आ जाएगा, ध्यान रखना आप। क्योंकि ये भले रिटन इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, पार्टली नॉट इंटायरली, क्योंकि मैं नहीं मानता कि प्रोनाउंसिएशन का रोल एग्जाम में नहीं है या आपके रिटन इंग्लिश में नहीं है, होता है। बहुत सारे एग्जाम है जिसमें आपको जीडी करनी पड़ेगी, ग्रुप डिस्कशन, बैंक पीओ के एग्जाम में, आपके एसबीआई के अंदर तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है आपके एग्जामिनेशन का। उसमें आपको उच्चारण ठीक नहीं होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आप स्टेनोग्राफ का एग्जाम दे रहे हो, आपका उच्चारण ठीक नहीं है लिखने समझने का और बोलने का, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। आपका आप सीरियस का एग्जाम दे रहे हो, बाद में 5 दिन का एसएसबी होगा, तो लगातार इंग्लिश बोलनी है आपने, बता रहा हूं आपको, तो कैसे काम चलेगा मुझे बताइए। आपका किसी जॉब इंटरव्यू में आप जा रहे हो, तो इंग्लिश में पूछे गए सवालों का जवाब आपसे अपेक्षित है कि इंग्लिश में ही देना होगा, और कोई हिंदी में पूछ रहा है तो वो जवाब फिर अपने हिंदी में देना है। हिंदी वाला जवाब, हिंदी में पूछे गए सवाल का जवाब आपने इंग्लिश में नहीं देना है। ये एक कॉमन सेंस है। तो प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, इंटोनेशन का अर्थ होता है कि आपकी आवाज में जो उतार चढ़ाव है, आप उसमें स्ट्रेस डाल रहे हो, आपका स्ट्रेस सही है या नहीं। स्ट्रेस शब्द में भी हो, चाहे आपके सेंटेंस के किसी पर्टिकुलर वर्ड में हो, ठीक है। ये सब चीजें हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये आपको कुछ समझ में आई होंगी। और इससे पहले कि मैं आपका अपना ये लेक्चर बंद करूँ, ये जो हमारा कल सैटरडे को मेरे जो रेगुलर क्लासेस हैं आपका ऑफलाइन, उसमें एक टेस्ट हुआ था, ठीक है। उस टेस्ट का जो सॉल्यूशन है मैं अपने अगले वीडियो में डालने की कोशिश करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि वो 1 या 2 वीडियो शायद उसके बनेंगे। अब मुझे पता नहीं कितने बनेंगे, डिपेंड करता है कि मैं कितना उसमें एक्सप्लेन करूंगा, तो भी सबके लिए फ्रूटफुल होने वाला है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आपका उसमें उसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे जब भी मेरे नए वीडियो आए। और भाई वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ वेरी overwhelming response. I'm telling you, I was really touched. So many people commented, and I tried to reply them, and I hope some of you have read those replies. Thank you so much. See you next time. Thank you so much. Bye bye.